Hello students. So this is the second part of the video which consists of the questions of 3 mark, 4 mark and 6 mark. I hope you like the answers that we have discussed in the previous video for all the 1 mark questions. Moving further, we have, as we know that we are having the solution to the economic sample paper. We already have discussed the general instructions, question 1, question 2, question 3, question 4, question 5 and question 6 we have already discussed. Now it's time for the question number 7. Student, it is very important to notice that as the time is changing, even CBSE has also changed the pattern of the questions they are asking, they are putting forward. You will be having the case study questions now. Okay, nothing to worry. Case study question rather are comparatively easy for you. You don't have to mug up anything. आपको कुछ रटना नहीं है. You only have to see what the information is given to you in the small source. एक सोर्स, एक बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, इसे उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें ध्यान से देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड उसी के बेस्ड आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे. As I am moving on to this question, read the following news report and answer question number 7 to 10 on the basis of the same. आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दी हुई है एंड क्वेश्चन 7 to 10 जो है वो उसके ऊपर ही बेस्ड है. दो तरीके होते हैं. हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लें एंड देन अपना सोर्स या जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, केस स्टडी दी हुई है, उसको स्टडी करें. ओके, आई फाइंड इट दैट कि वो ज़्यादा तरीका होता है लाइक आंसर फाइंडिंग वाला तरीका हो जाता है कि हमने सिर्फ फिलअप दिया हुआ है, हम सिर्फ आंसर फाइंड कर रहे हैं. आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि पहले आप केस स्टडी को रीड करिए कि इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, what information you can think, you can collect from it, and then we will move on to the question. So moving to the information that is given over here, the Reserve Bank of India RBI cut repo rate. जब भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ें पेंसिल अपने पास ज़रूर रखें और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको उसके उसी वक्त अंडरलाइन कर लें. ओके, तो एक जो पहला टर्म हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है दैट इज़ अ रेपो रेट. आई विल डिस्कस अबाउट देम आफ्टर अ मिनट. फर्स्ट आई विल रीड द होल थिंग. तो आपने पहला वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए एंड दैट इज़ द रेपो रेट. The Reserve Bank of India RBI cut repo rate to 4.4%, the lowest in at least 15 years. Also, it reduced cash reserve ratio CRR. Again, underline this word. Maintained by the banks for the first time in over 7 years. CRR for all the banks was cut by 100 basic points to release 1.37 lakh crore rupees across the banking system. RBI Governor Dr. Shaktikant Das predicted a big global recession, underline global recession, and said that India will not be immune. It all depends how India responds to the situation. Aggregate demand may be weakened, underline this thing, aggregate demand may be weakened, and ease core inflation. Okay, this is again a basic information, ease core inflation. ये एक न्यूज़ है, रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट है द इकोनॉमिक टाइम्स मार्च 27, 2020. ओके, अभी हमने क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं लेकिन देख लेते हैं व्हाट दे आर सेइंग कि आरबीआई ने रेपो रेट कम करा है. क्या होता है रेपो रेट? इट इज़ अ रेट at which RBI, that is the Central Bank of India, grants money, lends money for short term to the commercial banks. And इसको कम करा गया है. क्यों करा गया है? जब आपने क्रेडिट कंट्रोल के बारे में पढ़ा होगा तो आपने वहाँ इन टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा. जब रिज़र्व बैंक ये चाहता है दैट मोर मनी शुड पम्प इनटू द इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए, तब वो रेपो रेट को कम कर देता है. ओके, रेपो रेट को कम कर देता है जिससे कि कमर्शियल बैंक के को आसानी से पैसा मिल जाए. कमर्शियल बैंक को आसानी से पैसा मिलेगा तो वो आगे और लैंडिंग जो है उसको ज़्यादा बढ़ा देगा. ये सिचुएशन नॉर्मली ये सॉल्यूशन नॉर्मली कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हमारी इकोनॉमी
रिसेशन से फेस कर रही, रिसेशन को फेस कर रही होती है। ओके, सो पहली इन्फॉर्मेशन हमको ये दी गई है कि पिछले 15 सालों में हमारा रेपो रेट जो है वो रिड्यूस डाउन करके 4.4% कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, CRR भी लास्ट 7 ईयर्स में रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये CRR क्या होता है? अगेन कैश रिजर्व रेशियो है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है हर एक कमर्शियल बैंक को लीगल तरीके से अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ ऑल द नेट डिपॉजिट दे हैव, नेट एसेट्स दे हैव, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है जो उनको RBI के पास एज ए रिजर्व रखना पड़ता है। अगेन दिस इज अ मेजर टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन। अगर रिजर्व बैंक ये चाहता है कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट ज़्यादा करें तो वो इस CRR को कम कर देता है, एंड यही इस वक्त हुआ है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर कि पिछले 7 सालों में CRR को सबसे कम कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? सी, आई एम कमिंग स्ट्रेट टू द लास्ट बिकॉज एग्रीगेट डिमांड में वीकर एंड ई स्कोर इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड हमारी इकोनॉमी की कम हो गई है। ग्लोबल रिसेशन चल रहा है भाई। ग्लोबल रिसेशन का मतलब कि रिसेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, इट इज़ ऑल ओवर द ग्लोब, सारी कंट्रीज़ में है। COVID-19 हैज़ ब्रॉट रिसेशन टू ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ग्लोबल रिसेशन है एंड इंडिया विल नॉट बी इम्यून का मतलब इंडिया भी इससे कुछ बच नहीं पाएगी। इसीलिए हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होने के चांसेस हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं, जिस कारण कि इस अपनी इकोनॉमी को इससे बचाने के लिए RBI ने एक कोशिश करी है। वो कोशिश ये है कि उन्होंने रेपो रेट को कम कर दिया है और CRR को कम कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर कि व्हाट डज दिस पैसेज मीन। क्वेश्चन 7 कह रहा है कट इन द रेपो रेट बाय RBI इज लाइकली टू डैश द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अगर रेपो रेट कट कर दिया जाएगा तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? ओके, या सोचते हैं रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा भाई रेपो रेट कम होगा, इसका मतलब कमर्शियल बैंक विल फाइंड इट मोर इजी टू ग्रांट लोन्स टू द पीपल। ईजी लोन मिलेगा लोगों को ज़्यादा लोन मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, यानी कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा मतलब क्या है? लोग ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ओके, सो कट इन द रेपो रेट बाय RBI इज़ लाइकली टू इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, राइट आंसर इज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, डिक्रीज इन CRR विल लीड टू डैश। CRR कम होने से क्या होगा? सेम वही जो ऊपर होगा। रेपो रेट भी कम इसीलिए करा गया था कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े, यानी कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े। CRR भी इसीलिए कम करा गया था। वी आर गिवन द 4 ऑप्शंस ओवर हियर। जब हमें ऑलरेडी पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड वीक हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए मेजर लिया हुआ है। तो भाई देखिए, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड ऑप्शन नंबर 8 को हटा दीजिए, फॉल तो होगा ही नहीं इससे। ओके, राइज इन एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि डू नॉट जंप ऑन टू द कंक्लूजन्स, पहले आगे भी देख लीजिए कहीं कोई और ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर दे या दैट हैज़ गॉट अ बेटर एक्सप्लेनेशन टू इट। तो ऑप्शन नंबर सी है, नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, गलत। भाई जब भी आप CRR को या किसी भी तरीके की क्रेडिट कंट्रोल मेजर RBI इस्तेमाल करता है तो एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट होना बहुत ही लाजमी सी बात है। इट इज़ क्वाइट बट नेचुरल देयर वुड बी सम इफेक्ट इन द एग्रीगेट डिमांड, वी हैव टू अज्यूम इट इज़ डन फॉर दैट। ओके, तो सी ऑप्शन हट जाता है, कोई चेंज डिमांड नहीं होगा। डी ऑप्शन कह रहे हैं फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। फॉल इन जनरल प्राइस लेवल कब होगा? जब अभी तो हमने पढ़ा, इट इज़ गिवन इन द इंफॉर्मेशन कि एग्रीगेट डिमांड वीक हो रही है एंड कोर इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं, तो दैट विल लीड टू राइज इन द प्राइस लेवल, नॉट फॉल इन द प्राइस लेवल। तो डी ऑप्शन भी हमारे लिए गलत हो जाता है। तो व्हाट डू वी हैव राइट नाउ? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ डिक्रीज इन CRR विल लीड टू राइज इन द एग्रीगेट डिमांड। ओके, now moving on to the 9th question, based on the same information again, the difference by which the actual aggregate demand exceeds aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as dash. Okay, now by this ये तो एक definitional question है। अगर आप inflationary gap, deflationary gap, excess demand, excess supply पढ़कर आए हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। जब भी हम inflationary gap की बात करते हैं या excess demand की बात करते हैं तो we always say कि फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए जितना AD हमको चाहिए, अगर हमारा एक्चुअल AD उससे ज़्यादा हो जाता है तो दैट इज़ द इन्फ्लेशनरी गैप एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग।
the difference between the actual aggregate demand, the difference by which the actual aggregate demand exceeds the aggregate demand at the full employment level is known as inflationary gap. Okay, now the 10th question, based again on the same passages, the impact of excess demand under Keynesian theory of income and employment in an economy. अगेन भाई, अगर आप इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ कर आए हैं, एक्सेस डिमांड पढ़ कर आए हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी. एक्सेस डिमांड, आई विल टेक 1 minute टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट. एक्सेस डिमांड क्या होता है? एक्सेस डिमांड सिचुएशन होती है जब हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है टू द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. भाई, फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहने के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए थी उससे ज़्यादा हो गई एग्रीगेट डिमांड. फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट नॉर्मली हम आपके क्लास 12th के लेवल पर हम 3 चीज़ों पर, 3 वेरिएबल्स पर इसका इफेक्ट पड़ते हैं: आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल. ओके, सो कमिंग ऑन टू द इनकम, नो चेंज इन द इनकम विल बी देयर बिकॉज आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना. द इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट. तो जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो ना ही उसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, ना ही उसका आउटपुट बढ़ सकता है, तो ना ही उसकी इनकम बढ़ सकती है. सिर्फ क्या बढ़ सकता है भैया? आप कुछ और बढ़ा नहीं पा रहे हैं. दे विल बी ओनली इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. सिर्फ आपका जनरल प्राइस लेवल है वो आपके लिए बढ़ता चला जाएगा. ओके, तो वी हैव ओवर हियर ए ऑप्शन डिक्रीज. डिक्रीज वर्ड तो बढ़ते ही छोड़ दीजिए इसको. अगर आप एक्सेस डिमांड की बात करें, डिक्रीज छोड़ दीजिए. अगेन बी में डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम छोड़ दीजिए. देन इज इंक्रीज इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल. अरे ये तो सब कुछ बढ़ा रहा है. ओके, ये तो पॉसिबल नहीं है. फुल एम्प्लॉयमेंट पे आप आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑलरेडी आप फुल एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकता है? छोड़ दीजिए इसे. डी, नो चेंज इन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. येस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन कि हमारे लिए आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ, जनरल प्राइस लेवल विल डेफिनेटली rise. So for us the right answer is the option number D. Okay, now the 11th question. We are moving on to the 3 and 4 mark question. I don't take much difference in the 3 and 4 mark question because but आपका थोड़ा सा ही वर्ड लिमिट में चेंज होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है आपका सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस में. ओके, बी स्टिक टू व्हाट द आंसर इज़, what the examiner is expecting from you. बहुत ध्यान से देखिएगा कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, स्पेशली जब आप क्वेश्चन पर आते हैं जो कुछ ऐसे हो. स्टेट विद वैलिड रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स. रीज़न देना है भाई, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख के मत आ जाइएगा. बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द CBSE दैट कि अगर आप सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख कर आए हैं, ओके, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. आपने सोचा कि चलिए ट्रू फॉल्स तो लिख दें, रीज़न सही हो या नहीं हो, आए या ना आए, तो सॉरी बेटे, उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा. आपका ट्रू फॉल्स सही रीज़न के साथ एकम्पनीड होना चाहिए, तब आपको इसका आंसर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा. सॉरी, ए ऑप्शन कह रहा है आपको, नॉट ऑप्शन, आई एम सॉरी अगैन. ए फैक्ट आपको दिया हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस and gross domestic product at market price are one and the same thing. Okay, GVA at market price or GDP at market price are one and the same thing. Quite confusing. क्यों 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 क्योंकि इसीलिए भाई, when I was looking for this answer, मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा कि वहाँ पे GVA एट मार्केट प्राइस ऑब्लिक कर दिया होता है GDP एट मार्केट प्राइस. ओके, बट बेटा बी वेरी वेरी श्योर over here कि conceptually it is not correct. The given statement is false. False क्यों है भाई? जब हम सिर्फ GVA बोल रहे हैं एट मार्केट प्राइस, सो दैट इज़ ओनली रिफ्लेक्टिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर. ओके, और जब हम GDP बोल रहे हैं तो दैट इज़ द एडिशन ऑफ द GVA एट मार्केट प्राइस फ्रॉम ऑल द 3 सेक्टर्स.
आप प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का, तीनों सेक्टर्स का आप जीवी एट मार्केट प्राइस निकाल लीजिए, उसको एडअप कर दीजिए, समेशन कर दीजिए, तब आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा। सिर्फ जीवी एट मार्केट प्राइस अगर हम बोल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो आप आंसर कैसे लिखेंगे? बी स्टिक टू द वर्ड लिमिट। ये बात आपसे बार बार बोलती हूँ, अपने वर्ड लिमिट्स को, अपने वर्ड्स को लिमिट करके रखिए। आप अपने वोकैबुलरी को, अच्छी वोकैबुलरी यूज़ कीजिए, अच्छे वर्ड्स यूज़ करिए, अच्छा आंसर फ्रेमिंग यूज़ करिए, गिव द गुड आंसर एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, डोंट डू दैट। ओके, सो फर्स्ट भी है वो है, आप सिंपल इतना लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट में लिख दीजिए गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, फिर रीज़न लिख दीजिए बिकॉज GV at market price represents only the value added from a particular sector and GDP at market price is a summation of the GV at market price from all the three sectors. You can give it in the equation form also. GDP at market price is equal to summation of GVA at market price from all the three sectors. If you wish, I can provide you the answer in the description also. Okay. B part. Intermediate goods are always durable in nature. नो भाई, अगर हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिस्क्रिप्शन, डिफरेंस, मीनिंग अच्छे से पढ़कर आए हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन कौन सी दो चीज़ें मिलकर बनाती हैं? व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू फर्स्ट रिकलेक्ट इन योर माइंड टू कैलकुलेट कि ये इंटरमीडिएट गुड है या नहीं? भाई पहले तो हम ये देखते हैं कि द गुड दैट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटीरियल, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। रॉ मटेरियल की क्या पहचान होगी? रॉ मटेरियल की पहचान ये होगी दैट इट विल लूज़ इट्स आइडेंटिटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, एक रेस्टोरेंट वाला ब्रेड ख़रीदता है और उसके ब्रेड पकौड़े बनाता है और बेच देता है, तो भाई उस ब्रेड पकौड़े बनाने के प्रोसेस में ब्रेड की अपनी आइडेंटिटी तो ख़त्म हो गई ना। ओके, एक टेलर कपड़ा लेकर आता है, शर्ट बनाता है और बेच देता है, तो भाई उस शर्ट बनाने के चक्कर में कपड़े की अपनी आइडेंटिटी तो ख़त्म हो गई ना, इसीलिए उसको इंटरमीडिएट गुड कहा गया है। ओके, दूसरा हम जब देखते हैं इंटरमीडिएट गुड को तो हम कहते हैं द गुड दैट इज़ यूज फॉर द रीसेल, जो रीसेल हो रहा हो। ओके, जो जिसमें और वैल्यू एडेड होनी हो। ओके, लेकिन दोनों डिस्क्रिप्शन यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट फैक्ट से रिलेटेड है। इंटरमीडिएट गुड ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर? नो, फॉल्स। आपको सिंपल आंसर इतना लिखना है कि नो, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली यूज एज अ रॉ मटीरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दे लूज देयर आइडेंटिटी once they are converted into finished good, and that is why they are semi durable in nature. Okay, moving on to the next question. Question number 12. Again, it's like giving reason, valid reason whether the following statements are true or false. Current account in BOP records only export and import of goods and services. थोड़ा सा सोचते हैं भाई कि ये BOP में, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। अच्छा, जब हम BOP पढ़ रहे थे तो हमने BOP में BOT और BOP में भी डिफरेंस पढ़ा। BOT में हमने पढ़ा भाई जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स आता है, एंड BOP में हमने पढ़ा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। ओके, बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। यही मत सोच लीजिएगा कि BOT में सिर्फ गुड्स आता था, विजिबल गुड्स, BOP में सिर्फ सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते थे तो ये सही हो जाता है। अरे भाई, देयर इज सम मोर थिंग्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। देयर आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूडेड इन दैट, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। सो हम आगे नहीं जा रहे हैं बिकॉज उससे हमको प्रूव हो गया कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो व्हाट विल आई डू? हम इसका सिंपल आंसर लिखेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। रीज़न, बिकॉज BOP करंट अकाउंट records export and import of goods and services along with the unilateral transfers also. Okay, that is why factoring comes also. That is why this statement is false. Okay. Next is borrowings from abroad are recorded in the capital account of the balance of payment debit side.
ओके, दिस क्वेश्चन इज अगेन अ सिंपल वन, लेकिन हमें थोड़ा सा सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम कैपिटल अकाउंट और बीओपी पढ़ रहे हैं तो एक तो मुझे कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए, दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, व्हाट आर द आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द डेबिट साइड एंड व्हाट आर द आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द क्रेडिट साइड. ओके भाई, ऐसा है वट एवर इज लीडिंग टू द इनफ्लो ऑफ करेंसी, हर वो चीज़ जिससे करेंसी का इनफ्लो हो रहा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा हो हमारे इकोनॉमी में, वो हमारे लिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है. एंड एवरीथिंग दैट इज़ लीडिंग टू द आउटफ्लो, हर वो चीज़ जो आउटफ्लो से जुड़ी हुई है वो हमारे लिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है. ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली तो हम ये देखेंगे कि अब कैपिटल अकाउंट भी देख लें. भाई कैपिटल अकाउंट में हर वो चीज़ आती है जो हमारे लिए एसेट्स एंड लाइबिलिटी को अफेक्ट करती है. एवरीथिंग दैट अफेक्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटी वो हमारे लिए कैपिटल अकाउंट में आती है. बोरोइंग है तो या श्योर, बोरोइंग है तो कैपिटल अकाउंट में तो आएगा ही आएगा, पर डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा. भाई कैपिटल सॉरी भाई, अगर पैसा इनफ्लो हो रहा है, आप बोरो करेंगे, आपकी इकनॉमी ने पैसा बोरो करा तो पैसा इनफ्लो हुआ ना, देयर इज अ इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, so that will be recorded on the credit side. Okay, so the given statement is false because borrowings from abroad will lead to the inflow of foreign currency and inflow of foreign currency will be recorded on the credit side. So this given statement is also false. Question number, okay, I have not written over any number over here. क्यों नहीं लिखा है भाई? क्योंकि ये उसी का ऑप्शनल पार्ट है. इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें. Trade deficit must exist if a country is facing a situation of current account deficit. Defend or refute the statement with valid argument. Okay, अब भाई इसको भी देख लें ज़रा. वो कह रहे हैं कि अगर आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट होना है, करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो ट्रेड डेफिसिट तो मस्ट है. अभी बताया ना आपको कि अगर आप बीओपी की बात कर रहे हैं तो बीओपी में बीओटी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. हो सकता है, इट कैन हैपन. करंट अकाउंट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. करंट अकाउंट में सिर्फ ट्रेड नहीं आ रहा है, करंट अकाउंट में ट्रेड के अलावा भी दूसरी चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं. देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट आर रिकॉर्डेड, अदर आइटम्स ऑल्सो दैट आर रिकॉर्डेड देयर. ओके, सो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि करंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा हो और ट्रेड अकाउंट में भी डेफिसिट हो रहा हो. ओके, बट ऐसा कंपल्जन नहीं है कि ट्रेड अकाउंट में डेफिसिट हो तभी हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा. बिकॉज हो सकता है आपका ट्रेड अकाउंट सरप्लस जा रहा हो बट अदर आइटम्स ऑफ द करंट अकाउंट दे आर शोइंग द डेफिसिट. It can happen. Okay, so we will write over here that the given statement we refute the given statement because ये true false नहीं है, तो you also answer according to what is given over here. So you will write we refute the given statement because it may be a situation since trade account या trade items are a part of the current account. Current account is a broader term. So there may be a situation that trade deficit occurs along with the current account deficit, but it can also happen that though there is a trade surplus, but the other items of the current account are showing deficit. Because of that, the current account deficit occurs. Okay, थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसमें. Okay, एक छोटा सा पार्ट है ट्रेड अकाउंट करंट अकाउंट का, उसका होल पार्ट नहीं है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 says over here define money multiplier and credit creation, and B part है that the credit creation is inversely related to the reserve deposit ratio. Justify the given statement using a hypothetical example. Okay, अब इस क्वेश्चन के लिए
क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन इज़ वेरी इजी, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। भाई डेफिनेशनल क्वेश्चन है, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि डेफिनेशनल क्वेश्चन में ज़्यादा आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपली बता देना है कि व्हाट इट इज़। आपको गिवन डेफिनेशन, जो मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन आप पढ़ कर आए हैं, लर्न कर कर आए हैं, आप वही लिख दीजिए। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर इज़, या क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं इसको, इट शोज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल मनी दैट द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट। ओके, दिस शोज़ their ability to create credit। ओके, अब नाउ ये पूछ रहे हैं दूसरे पार्ट में, पहले में सिर्फ डेफिनेशन देनी है क्योंकि इट इज़ ऑफ 2 मार्क, आप सिर्फ 2 लाइन्स में डेफिनेशन देंगे जितनी ज़रूरत है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम मोर देन दैट ऑन दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। जस्टिफाई विद अ हिपोथेटिकल एग्जाम्पल। अगर आपसे हिपोथेटिकल एग्जाम्पल बोला गया है तो आप इतना मानिए कि हिपोथेटिकल एग्जाम्पल मतलब यू हैव टू टेक अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, यू सिंपली राइट डाउन कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला फॉर क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द क्रेडिट क्रिएशन फॉर्मूला दैट यू नो, दैट इज़ 1/LRR। ओके, डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। ओके, तो इट इज़ 1/LRR, 1 रिजर्व रेशियो। भाई बहुत सारी बुक में इसको सिर्फ रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं और बहुत सारी बुक्स में इसको लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनी ऑफ इट। ओके, बड़ा ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि रिजर्व रेशियो से, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो से इसका इन्वर्स रिलेशन है। अब 2 वैल्यूज़ ले लीजिए। पहली, अगर आपको पूरा क्रेडिट क्रिएशन लेना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन 2 थिंग। नंबर 1 इज़ द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एंड नंबर 2 इज़ द इनिशियल डिपॉजिट विद द बैंक्स। सपोज द डिपॉजिट रेशियो इज़ 10%। ओके, इसको हम 0.1 ले लेते हैं एंड इनिशियल डिपॉजिट इज़ 1000। तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा? 1/0.1 इंटू 1000। 1/0.1 करेंगे, आप डेसिमल हटाएंगे तो एक ज़ीरो ऊपर चला जाएगा। ओके, दैट इज़ 10 इंटू 1000, दैट बिकम्स 10,000। ओके, तो यानी कि अगर डिपॉजिट रेशियो 0.1 है यानी कि 10% है तो आपका पूरा क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो 10,000 का हो जाता है। एक और, बिकॉज प्रूफ करना है ना इन्वर्स रिलेटेड है या नहीं, एक और लीजिए आप। एक और में आप क्या लेंगे? अब जब आपने पहले में 0.1 लिया है तो दूसरे में आप 0.2 ले लीजिए, बढ़ा लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 0.6 ले सकते हैं, 0.7, एनीथिंग। मैं सिर्फ थोड़ा सा मुझे एक डिफरेंस शो करना है तो ईजी ले रही हूँ। हम टेकिंग इट 0.2 या 20%। अगर हम रिजर्व रेशियो 20% बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? ओके, सो CR क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, 1/0.2 इंटू इनिशियल डिपॉजिट। अगेन आप डेसिमल हटाएंगे, एक ज़ीरो पर ले जाएंगे, 10/2 इंटू 1000, 10/2 5 हो गया। ओके, 5 हो गया, 5 इंटू 1000 5000 हो गया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ऊपर जब 10% रिजर्व डिपॉजिट था, रेशो था, तो क्रेडिट क्रिएशन हम 10,000 कर पा रहे थे, और जब हमने रिजर्व डिपॉजिट रेशो 0.2 कर दिया या 20% कर दिया तब हम क्रेडिट क्रिएशन जो है वो 5000 का कर पा रहे हैं। ओके, सो आई end up this video over here till question number 13 because आगे जो हमारे questions हैं they are like big question, long questions हैं that I will continue in the next video, hoping that you have it is just an attempt to make you understand and मैं ये उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ इसे समझाने में। तो I need your comment, प्लीज़ कमेंट ऑन इट कि आपको कहाँ प्रॉब्लम लग रही है, कहाँ ठीक लग रहा है, या क्या आप एडिशन चाहते हैं, क्या आप और सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस चाहते हैं। लिसन वेरी केयरफुली बेटा कि दिस टाइम वी आर इन 2021, एग्ज़ाम तो होना ही है एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, यू कैन हैव द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। सो कमिंग वीडियोज़ में मैं चैप्टर वाइज सॉर्ट आउट करके ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स
दैट कैन कम, जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सुन सके, देख सके, उसको हम इंक्लूड करना चाहेंगे. बट ये सिर्फ तब हो पाएगा ओनली व्हेन आई कैन कम टू नो कि येस आई एम रीचिंग समवन, आई एम रीचिंग सम पीपल. Okay, so if I'm able to reach you, you please reach me, you please give me the response, only then I will be able to help you people. Okay, question number 14, 15, 16, 17 मेरे next video में होगा. Till then, bye everybody, and I will be uploading other videos also that will be including all the question, especially पहले मैं question 1 mark वाले include करूँगी in the for the upcoming exam because time कम है. Hope to upload it soon. Thank you very much.